باجوڑ میں JUI کے ورکرز کنونشن میں دھماکے سے 40 افراد جاں بحق ہو گئے، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ IG خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔ ضلع باجوڑ کی تحصیل خان میں JUI کا ورکرز کنونشن جاری تھا کہ دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں JUI تحصیل خان کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان بھی شامل ہیں۔ دھماکے کے زخمی اور لاشوں کو DHQ اسپتال منتقل کیا گیا۔ CMH پشاور اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ شدید زخمیوں کو آرمی ہیلی کاپٹر سے پشاور لے جایا گیا۔ IGFC میجر جنرل نور ولی بھی باجوڑ پہنچے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے پولیس حکام سے دھماکے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کہتے ہیں باجوڑ دھماکے میں زخمیوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال پھر خراب ہو رہی ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کو سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ آج کا جو واقعہ تھا باجوڑ میں وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ایک پرامن سیاسی جماعت کے کنونشن پہ اس طرح کا اٹیک کرنا اور اتنی بڑی کیجویلٹی کہ 40 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 60 سے زیادہ شدید زخمی ہیں۔ ہم تمام شہید جتنے بھی ہوئے ہیں، ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر علاج کے مواقع مہیا کریں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے اظہار ہمدردی اور جاں بحق افراد کے لیے دعا کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور اسد محمود سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ واقعے میں ملوث مجرموں کو قرار واقع سزا ملے گی۔ دہشت گردی کا خاتمہ پوری قوم کا عہد ہے۔ دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے بھی دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ باجوڑ دھماکے کے بعد سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت کی۔ مولانا فضل الرحمان اور اسد الرحمان سے گفتگو میں کہا واقعے میں ملوث مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ دہشت گردی کا خاتمہ پوری قوم کا عہد ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہمارے محافظ دشمن کے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مجھ سمیت پوری قوم واقعے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ شہباز شریف اور چیف سیکریٹری کی IG پولیس خیبر پختونخوا سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی اور ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن کی بھی ہدایت کی۔ دوسری جانب صدر مملکت عارف علوی، سابق صدر آصف علی زرداری، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی باجوڑ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چینی کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ 3 روزہ سرکاری دورے پر خصوصی طیارے سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینی نائب وزیر اعظم CPEC کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ 4 وزراء سمیت ایک وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہی لائفنگ صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے اور پاکستانی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات، CPEC منصوبوں کا جائزہ اور نئے منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ہی لائفنگ CPEC کے 10 سال مکمل ہونے پر ہونے والی ڈیکیڈ آف CPEC کے عنوان سے خصوصی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تقریب میں CPEC منصوبوں پر کام کرنے والی چینی کمپنیوں کو ایوارڈز دیے جائیں گے۔ مہمان خصوصی چینی نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانے اور عشائیے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ 1 اگست کو چینی نائب وزیر اعظم آرمی چیف سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو جائیں گے۔ چین کے نائب وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کو CPEC اور پاک چین اقتصادی تعلقات میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ نائب چینی وزیر اعظم CPEC منصوبوں پر عمل درآمد میں بھی متحرک رہے۔ چینی نائب وزیر اعظم کا دورہ پاک چین اعلیٰ سطح کے رابطوں کا حصہ ہے۔ دورے سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग का चीन के बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के निफाज में नुमाया किरदार है, जिनमें से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी एक अहम मंसूबा है। नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन 2017-23 के चेयरमैन के तौर पर इन्होंने पाकिस्तान में CPEC के मुतादिद मंसूबों की मंसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया है। सिफारती माहिरीन के मुताबिक चीन के नायब वजीर आजम के दौरे से गवादर पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। दौरा ये जाहिर करता है कि CPEC जारी रहेगा। एक सफीर आकिल नदीम ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि चीनी नायब वजीर आजम का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। हुकूमत जो है वो अपना वक्त पूरा कर रही है, उसके बावजूद उनका आना ये उनके एतमाद जाहिर करता है कि वो पाकिस्तानी जो इंतजामिया है या पाकिस्तान में जो निगरान सेटअप भी आएगा उस पर वो एतमाद करते हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम तक और मुकम्मल हो सके। साबिक सफीर अली सरवर नकवी ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में इस अमर का इजहार किया कि निगरान हुकूमत के साथ भी CPEC पर काम जारी रहेगा। नायब वजीर आजम के आने से कई इसको जान इसमें डाली जाएगी और पाकिस्तान और चीन मिलकर इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुस्बत बात है और चीन का बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने अपने नायब वजीर आजम को इसके लिए यहाँ पाकिस्तान भेजा है। इससे कबल चीन के सदर शी जिनपिंग ने 20 से 21 अप्रैल 2015 को पाकिस्तान का दौरा किया था। इन्होंने 2014 में भी पाकिस्तान आना था, लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने के बायस ये दौरा मंसूख कर दिया गया था। इन्होंने 2020 में भी पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये दौरा भी मंसूख हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में 50 अरब रुपए की लागत से जदीद मेडिकल सिटी समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया है। खिताब में कहा, नवाज शरीफ और नून लीग की दुश्मनी में मुल्की मफाद के मुतादिद मंसूबों को मुजरिमाना गफलत से ताख़ीर का शिकार किया गया। 2014 में धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान भी मुलतवी हुआ था। गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद की तकरीब का इनकाद हुआ। इन मंसूबों में लाहौर में 50 अरब रुपए की लागत से मेडिकल सिटी, लाहौर रिंग रोड मंसूबा SL3 शाहदरा, कालाशाह काकू मेट्रो बस तौसीई प्रोग्राम, 1200 मेगावाट पंजाब थर्मल पावर प्लांट और दीगर मंसूबे शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ दौर के हवेली बहादुर शाह मंसूबे को खत्म कर दिया गया। ताखीर और मुल्क दुश्मनी के बायस 77 अरब रुपए दरियाबुर्द हो गए। इन पैसों से 50 अरब रुपए की लागत से मेडिकल सिटी मुकम्मल हो सकता था। उनका कहना था कि चेयरमैन PTI के दौर में मुल्की मईशत की तबाही की गई। हवेली बहादुर शाह 74 अरब रुपए का मंसूबा, उसकी कुल लागत थी कीमत की, मगर इस ताखीर और बदनीति और मुल्क दुश्मनी की वजह से 77 अरब रुपए के कॉस्ट ओवररन्स हुए। हराम के पैसे गए, वो हराम के बिल्कुल, वो डूब गए समंदर में, दरिया बुर्द हो गए बिल्कुल। मेडिकल सिटी जिसकी आज संगे बुनियाद रखा गया है, उसकी पूरी कीमत 50 अरब रुपए है। अगर ये 77 अरब रुपया दरिया बुर्द ना होता तो मेडिकल सिटी की पूरी एलोकेशन करने के बावजूद 20 अरब बच जाते किसी यूनिवर्सिटी और किसी और काम के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सितंबर 2014 में चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान के मौके पर चेयरमैन PTI ने D चौक पर धरना दिया हुआ था और इन धरनों के नतीजे में चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया। जब हम कशकोल लेकर जाते हैं तो शर्म आती है, उंगलियां उठती हैं। जिस तरह वहां पर घेराव किया गया और वहां पर धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। उस ज़माने में जो चीनी सफ़ीर थे वो आजकल वहाँ पर वाइस मिनिस्टर हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं अपने आला सतही वफ्द के साथ। तो बहरहाल शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम धरना 3 दिन के लिए भी खत्म नहीं करेंगे। वजीर आजम का कहना था कि जिन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा है, हमारी कोशिश होगी कि इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को सहूलियात मुयसर आए। अब आपको बताएं, सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने तारीख साज दौरा चीन के दौरान चीन की आला क़यादत से मुलाकातें की हैं। दोनों ममालिक के अफवाज के माबैन ताउन, स्ट्रेटजिक इत्तेहाद और तरबियती शोबे में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया है।
सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स आमद पर चीनी फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी फिजाइया के कमांडर ने पाक फिजाइया की दिफाई मैदान में खुद इन्हिसारी की पेशरफ्त को सराहा। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का कहना था कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एयर चीफ ने दौरा चीन के दौरान चीनी वज़ीर दिफा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर और चीनी दिफाई सनत के अहम ओहदेदारों से भी मुलाकातें की। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई इस्लामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल 2023 सेनेट में पेश कर दिया गया है। ताहम हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान के एहतजाज के पेश नज़र चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल को ड्रॉप कर दिया। सेनेट इजलास में इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का बिल पेश हुआ तो हुकूमती अरकान और अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अपोजिशन की तरफ से बिल की मुखालफत की गई, जिसके बाद न सिर्फ वफाकी वजीर शहरी रहमान ने इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए बल्कि हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी मुखालफत में बोल पड़े। मुझे खदशा है कि ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। इजलास के दौरान हुकूमती इत्तेहादी जमात JUI फे के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने वॉकआउट की धमकी दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है और अगर कोई बज़िद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। हुकूमती सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी बिल की खुलकर मुखालिफत की। जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का मसला आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स आप किसी न किसी हवाले से जो है ना उसको कर्टेल कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे लेजिस्लेशन करनी है और इस रफ्तार से करनी है और इस तरह से छुट्टियों में करनी है तो फिर सर ये कम से कम जो है ना, मैं एक इत्तेहादी सेनेटर के तौर पे, मुझे नहीं पता कि मेरी पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, मगर मैं इससे अपनी बरात का इजहार करता हूँ सर। कल ये हम सब के लिए मुसीबत बनेगा, कल ये सब हमारे लिए ये ताना होगा कि हमने बैठ के इस हाउस में आपकी सदारत में हमने इस तरह की लेजिस्लेशन की थी। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान के मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूँ, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस किसी भी तंजीम के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी, असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की तजवीज़ दी गई थी। बिल के तहत पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस तंजीम, तहलील और 50 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। मुआवनत या साजिश या उकसाने वाले शख्स को 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़ दी गई थी। सेनेट ने तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 मंजूर कर लिया है। बिल के तहत सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत तमाम अवामी अहदेदारों पर तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने पर पाबंदी आयद होगी। इस्लामाबाद से ख़ुसूसी रिपोर्ट। सदर वजीर आजम, जजेस, फौजी, सिविल मुलाजमीन पर तोशाखाना से तोहफा लेने का दरवाजा बंद। तहाइफ नीलामी में भी नहीं खरीदे जा सकेंगे। तोहफा वापस न करने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बिल का मतन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए कानून मलिक शहादत अवान ने बिल पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक तोशाखाना में जमा तहाइफ नीलामी के जरिए फरोख्त होंगे। कदीम अशिया और गाड़ियाँ वसूल कुनिंदगान को खरीदने की इजाजत नहीं होगी। नवादरात को अजायब घरों या सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। गाड़ियाँ पहले तोशाखाना में जमा होंगी, फिर काबीना डिवीजन के ट्रांसपोर्ट या प्रोटोकॉल पूल का हिस्सा बनेगी। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली, विफाकी काबीना, मुशीरों और मावनीन खुसूसी, अटॉर्नी जनरल, सूबों के एडवोकेट जनरल्स, प्रोसिक्यूटर जनरल्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जजेस पर इतलाक होगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के सिविल और फौजी मुलाजमीन, हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल कारपोरेशनों, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन पर भी इसका इतलाक हो। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और उनके खानदानों के अफराद को बराह रास्त या अवामी नीलामी के जरिए तोशाखाना से तहाइफ खरीदने की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तहाइफ की वसूली की इतला फौरी काबीना डिवीजन को देने, तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद होंगे। अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने तोहफे की वसूली की इतला न दी तो उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। बिल में एक शिक का इजाफा किया गया है। तोशाखाना के तहाइफ से हासिल होने वाला पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा, जबकि नीलामी से मिलने वाली रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, हर रोज़ डिफ़ॉल्ट की खबरें सुनते थे। दुनिया चाहती थी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम एक एटमी ताकत हैं। अगर मईशत बेहतर कर ली तो हम लीड करेंगे।
मजीद कहा IMF मुआहिदा ना होता तो प्लान बी तैयार था। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। IMF के हवाले से कि मुश्किल दिन गुजर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये 24वीं मईशत तो बन चुके थे। आपकी लोएस्ट इन्फ्लेशन थी 2%, आपकी 4% CPI थी, आपका 6% GDP ग्रोथ था, आपके बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ दी साउथ एशिया थी, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, आपकी स्टॉक इंडेक्स जो है 100 KSC वो 54 तक क्रॉस कर चुकी थी। वो क्या हुआ फिर 24th इकोनॉमी से हम क्यों 47 पे आए? मेरा ख्याल है कि सबको विदाउट ए पॉलिटिकल होके मुल्क की इंटरेस्ट में सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई, ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। हमें सफर दोबारा शुरू करना है। चेयरमैन साहब 47वीं मईशत से वापस 24th, पाकिस्तान वाज प्रोजेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ G20। आप एक अपना मिसाइली कुव्वत है, आप एक एटमी कुव्वत है। जिस दिन आपने इकोनॉमिकली सॉवरन कर लिया, यू विल लीड द इस्लामिक उम्मा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन हम 24वीं से 20 में जाना था, उसकी प्रेडिक्शन थी 2030, और फिर दुनिया की 18वीं मईशत, फिर 2050 दुनिया की 16वीं मईशत। हमने अपना जो है इस पूरे का पूरा हमने अपने सिस्टम को बेड़ा कर लिया है। आज हम 47 मईशत पिछले साल से हैं। अल्लाह करे हम ये सफर जल्दी से जल्दी इससे निकलें। ऑल आई कैन अश्योर यू, देखें ये ना बनती है एक क्विक, ना ये इकोनॉमी तबाह होती है ऑल ऑफ ए सडन। ये बनी थी 13 में। वी वर मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री, वी वर डिक्लेयर टू बी डिफॉल्टिंग इन नेक्स्ट 6 to 7 months। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं ना जी। 3 साल में अब वहां पहुंच के 16-17 में कि जब दुनिया आपको तारीफें करने लगी, पाकिस्तान इज लाइकली टू बी सेकंड चॉइसेस्ट प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तमाम दुनिया के हेड, मुझे कोई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी हुकूमत का टेन्योर दिखा दें जिसमें दुनिया के तमाम मल्टीलैटरल अदारों के हेड्स पाकिस्तान आए हों, इसी मैरियट और इसी सरीना में, और वो बैठ के पाकिस्तान की तारीफें ना करके। ऑल दिस ऑल डॉक्यूमेंटेड। आगे बढ़कर आपको बताएं, हालिया बारिशों की तबाहकारियाँ जारी। मुल्क भर में 173 अफराद मानसून बारिशों के बायस जान की बाजी हार गए। सबसे ज़्यादा पंजाब में 67 और खैबर पख्तूनख्वा में 47 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में 260 अफराद ज़ख्मी भी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी, जाँ बहक अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। NDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट में बताया कि मुल्क भर में 25 जून से 29 जुलाई के दौरान 173 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में 67, खैबर पख्तूनख्वा में 47, सिंध 21, इस्लामाबाद से 11, बलोचिस्तान में 10 और आजाद कश्मीर में 12 अमवात रिकॉर्ड की गयी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 69 मर्द, 32 खवातीन जबकि 72 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। NDMA के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 260 बताई गई है, जिनमें 110 मर्द, 76 खवातीन और 74 बच्चे शामिल हैं। इस दौरान मुल्क भर में 1485 घरों को नुकसान पहुँचा। हालिया बारिशों से 475 माल मवेशियों को भी नुकसान पहुँचा।